میں سیدھا حوالدار جمعہ خان کے پاس آ گیا۔ جمعہ خان، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اپنا تو کام ختم ہو گیا، چلو واپس چلتے ہیں۔ کیا ہوا ملک صاحب؟ جمعہ خان نے کہا، آپ خاصے تھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا، میری تھکاوٹ کو بھول جاؤ، یہ بتاؤ راجو راکٹ کون ہے؟ راجو راکٹ؟ ہاں جمعہ خان، میں نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، راجو راکٹ مجھے فوری طور پر مطلوب ہے، تم جانتے ہو اسے؟ اسے کون نہیں جانتا جناب، جمعہ خان نے کہا، وہ ہمارے علاقے کا مشہور گنڈا ہے۔ آپ چونکہ ابھی اس تھانے میں نئے آئے، یہ راکٹ کہاں پایا جاتا ہے؟ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ چودھری شہادت علی کے پنڈ میں ملک صاحب، یعنی تینوں کردار ایک ہی گاؤں کے ہیں۔ کون تینوں جناب؟ حوالدار کو پوری صورتحال سے آگاہی نہیں ہوئی تھی، وہ نہیں جانتا کہ سلمہ نے آخری سانسوں میں کتنا بڑا انکشاف کیا تھا۔ میں نے اسے مختصر طور پر بتایا تو وہ بولا، جناب پھر تو سارا کیس ہی حل ہو گیا۔ کسی حد تک کہہ سکتے ہو؟ کسی حد تک کیوں جناب؟ جمعہ خان پرجوش لہجے میں بولا، سیدھی سی بات ہے، عارف علی کو راجو راکٹ نے قتل کیا ہوگا۔ میں نے اس کے تجزیے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تو وہ خود ہی بولا، ملک صاحب، مقتول عارف علی کا متوفیہ سلمہ کے ساتھ ضرور کوئی تعلق تھا، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ راجو راکٹ کا ان دونوں سے کیا تعلق تھا۔ میں نے کہا، جمعہ خان، بہت جلد سب کچھ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا، قبل از وقت اپنے ذہن کو تھکانے کی کوشش نہ کرو۔ آپ کی تفتیش کا انداز نرالا ہے ملک صاحب، جمعہ خان نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، آپ سے جو پہلے تھاندار صاحب تھے جو اس تھانے میں متعین تھے، وہ تو 2 منٹ میں پکڑ کر بندے کو لائن حاضر کر دیتے تھے، جبکہ آپ بڑے بڑے معاملات کو بھی بڑی سہولت سے لیتے ہیں۔ میں تمہاری بات نہیں سمجھ سکا جمعہ خان، میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں نے کہا، رائے سے کام لیا ہے؟ وہ بولا، خودکشی، اخذوزی، قابل دخل اندازی پولیس معاملات ہیں، لیکن آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ تمہارا اشارہ سلمہ کی طرف ہے؟ جی ملک صاحب، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، جمعہ خان، مجھے بخوبی علم ہے کہ کون سا معاملہ قابل دخل اندازی پولیس ہے اور کون سا نہیں، لیکن میرا کام کرنے کا اپنا انداز ہے۔ میرے درپیش اس وقت سب سے اہم معاملہ عارف علی کے قاتل کی تلاش تھا، اور میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس معاملے میں سلمہ کی ذات بھی ملوث ہے۔ میں نے سلمہ کے لواحقین کو دانستہ ڈھیل دی تھی، اور اس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ بھی ہوا۔ رفتہ رفتہ تم میرے اندازے سے واقف ہو جاؤ گے، تو اب آپ گرداور اس کی بیوی کو شامل تفتیش کر لیں گے۔ میں نے کہا، ضرورت پڑی تو چودھری اینڈ کمپنی کو بھی نہیں بخشوں گا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے ناسیانہ انداز میں کہا، جمعہ خان، ایک بات میری کان کھول کر سن لو، ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے، گرم گرم کھانے سے منہ جل جاتا ہے۔ یہ تو آپ واقعی ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے مزید کہا، اور مصیبت میں گرفتار افراد کے ساتھ تھوڑی بہت رعایت کر دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں گرداور اور اس کی بیوی کو سلمہ کی خودکشی کی کوشش کے سلسلے میں تنگ کر کے وہ مفید معلومات حاصل نہیں کر سکتا تھا جو میں نے دوستانہ فضا قائم کر کے حاصل کی ہیں۔ ویسے بھی سلمہ کی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں تھانے دارانہ انداز میں اس کا بیان لینے کے لیے ان پر مسلط ہو جاتا۔ ملک صاحب، آپ تھانے دار کم اور سوشل ورکر زیادہ لگتے ہیں، جمعہ خان نے سرسری لہجے میں کہا۔ جمعہ خان، تھانے دار دراصل ایک سوشل ورکر ہی ہوتا ہے، میں نے تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کے پیچھے قانون کی طاقت ہوتی ہے، اور وہ سرکاری وردی پہن کر اپنے علاقے کے لوگوں کو مسائل حل کرنے میں شب و روز مصروف رہتا ہے۔ ایک لمحے کے توقع کے بعد میں نے اضافہ کیا، جب کوئی تھانے دار ایسا نہیں کرتا تو پھر انصاف ناپید ہو جاتا ہے، مظلوم کمزور سے کمزور تر اور ظالم مضبوط سے مضبوط ترین ہو جاتا ہے، اور یہ بات اس قادری مطلق کو سخت ناپسند ہے۔ حوالدار مجھ سے خاصا متاثر نظر آ رہا تھا، جذباتی لہجے میں بولا، ملک صاحب، میری دعا ہے کہ اس ملک کے سارے تھانے دار آپ جیسے خیالات کے مالک ہو جائیں۔ واپسی کے سفر کے دوران میں حوالدار جمعہ خان کو میں جائز اور ناجائز، غلط اور صحیح، اچھائی اور برائی کے درمیان واضح فرق سے بتفصیل آگاہ کرتا رہا۔ جب ہم تھانے پہنچے تو رات کے 8 بج چکے تھے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ ایسے نزاکت علی نے آ کر اطلاع دی، ملک صاحب، آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ وہ کیا نزاکت علی؟ میری گھر والی نے بہت کام کی باتیں معلوم کر لی ہیں، وہ پرجوش لہجے میں بولا۔ اب عارف علی کے قتل کا معاملہ زیادہ آسانی سے نمٹ جائے گا۔ نزاکت علی نہیں جانتا تھا کہ اب یہ کیس کون سا رخ اختیار کر چکا تھا۔ بہرحال میں نے پوچھ لیا، تمہاری گھر والی کیا خبر لائی ہے؟ ملک صاحب، آپ کا اندازہ درست تھا، عارف علی کا گرداور کی بیٹی سلمہ سے عشق والا معاملہ تھا۔ دونوں کے درمیان بڑے خفیہ انداز میں چکر چل رہا تھا، دونوں راتوں کی تاریکی میں چھپ چھپ کر ملتے تھے۔ اب وہ نہ چھپ کر مل سکیں گے اور نہ سب کے سامنے، میں نے کہا۔ اس کہانی کا انجام بہت دردناک ہوا ہے نزاکت علی۔ پھر میں نے اس انجام سے آگاہ کیا تو وہ افسردہ نظر آنے لگا۔ ملک صاحب، دونوں حرام موت مارے گئے۔ میں نے کہا، سلمہ نے کیلے مار دوا پی کر جس حماقت کا ثبوت دیا تھا، اس کا نتیجہ بہرحال حرام موت کی صورت ہی میں نکلنا تھا۔ ہاں، البتہ وہ مرنے سے پہلے عارف علی کے قاتل کی طرف ایک واضح اشارہ کر گئی ہے۔ نزاکت علی کے اصرار پر میں نے اسے سلمہ کی زبان سے ادا ہونے والے آخری الفاظ میں بارے میں بتایا تو بولا، ملک صاحب، راجو راکٹ کی شہرت واقعی بہت خراب ہے۔ پہلے والے تھاندار صاحب نے اس کے ساتھ خاصی رعایت کرتے تھے، اس وجہ سے وہ خاصا شیر ہو گیا تھا اور منمانی کرتا پھرتا تھا۔ میں نے کہا، نزاکت علی، میں ایسے گنڈوں کی گنڈا گردی ناک کے راستے نکالنے کے 101 طریقے جانتا ہوں۔
तुम चंद सिपाहियों के साथ लेकर जाओ और राजू राकट को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके मेरे पास ले आओ। जो हुक्म जनाब, एएसआई ने सल्यूट करते हुए कहा। आपने दिल खुश कर दिया है। इस थाने से राजू की गिरफ्तारी का पहली मर्तबा हुक्मनामा जारी किया जा रहा है। मैं अभी इस फन्ने खान को आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मैंने कहा, और सुनो, अगर राजू गिरफ्तारी देने में कोई पसो पेश करे तो तुम सख्ती से भी दरेग न करना। इसकी मनमानियाँ मैं नाक के रास्ते निकाल दूंगा। आप फिक्र ही ना करें मलक साहिब, एएसआई ने खुश होते हुए कहा। राजू की मुरम्मत करके मुझे दिली मुसरत होगी। एएसआई के जाने के बाद मैंने दूसरे एएसआई सुलेमान शाह को अपने पास कमरे में बुला लिया। जी मलक साहिब। मैंने कहा, सुलेमान शाह, तुम कल सुबह ज़रा जल्दी थाने पहुंच जाना। किसी खास मिशन की तैयारी है जनाब? हाँ, खास ही समझो। मैंने कहा, मैं कल लाहौर जा रहा हूँ और तुम भी मेरे साथ चलोगे। ठीक है, मैं कितने बजे आ जाऊँ जनाब? ठीक 8 बजे। मैंने कहा, सीधे मेरे सरकारी क्वार्टर में आना। और हाँ, हम सादा लिबास में लाहौर जाएंगे। मैं आज का पूरा दिन थाने से बाहर रहा था और कल के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता था। मैं महबूब ज्वेलर से जाकर तस्दीक करना चाहता था कि जो अंगूठी मैंने सलमा की उंगली में देखी है, क्या वही अंगूठी थी जो आरिफ अली ने 1 माह कबल खरीदी थी। अगरचे आरिफ अली और सलमा के ताल्लुकात अब मेरे इल्म में आ चुके थे, लेकिन मैं हर किस्म की तसल्ली करना चाहता था। वैसे तो ये बात इरशाद हुसैन से भी पूछी जा सकती थी कि सलमा की उंगली में पाई जाने वाली अंगूठी कहाँ से आई थी, लेकिन इसके घर में पहले ही एक क़यामत टूटी हुई थी। थोड़ी देर बाद एएसआई नज़ाकत अली खाली हाथ वापस आ गया। मैंने पूछा, राजू राकेट को नहीं लाए? नज़ाकत अली, मलक साहिब, वो गांव से कहीं बाहर गया हुआ, इसने बताया। मैंने होशियार किस्म के चंद सिपाहियों की ड्यूटी लगा दी है कि जैसे ही वो गांव में नजर आए फौरी तौर पर इत्तला दें। ये तुमने ठीक ही किया है नज़ाकत अली, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा, लेकिन इसकी वापसी के इंतजाम में वक्त ज़ाया नहीं किया जा सकता। फिर मैंने एएसआई को हिदायत की कि गाँव से बाहर जहाँ जहाँ वो पाया जाता हो इसे तलाश किया जाए। मैंने इसे छापामार टीमें तश्कील देने का मशवरा दिया। अगले रोज़ में हस्बे प्रोग्राम एएसआई सलमान शाह के साथ लाहौर गया। सराफा बाजार में महबूब ज्वेलर्स की दुकान तलाश करने में मुझे ज़रा भी दुश्वारी नहीं हुई। वो खासी बड़ी और मशहूर दुकान थी। दुकान का मालिक महबूब खान खासा खुश मिजाज और शाइस्ता इंसान था। वो बड़ी मोहब्बत से मिला और पूछा, फरमाएं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैंने अपना तारुफ करवाने के बाद कहा, महबूब खान साहिब, मैं कत्ल के केस की तफ्तीश के सिलसिले में आपके पास आया हूँ। वो मुझे दुकान के ऊपरी हिस्से में ले गया। ये एक अलग थलग हिस्सा था। हम बैठ गए तो इसने पूछा, कौन कत्ल हो गया है और मेरा इस कत्ल से क्या ताल्लुक़ है? मैंने कहा, आपकी दुकान का ताल्लुक़ इस कत्ल से बड़ा गहरा है। वो सरासीमा नजर आने लगा। जनाब, ज़रा खुलकर बताएं। मैंने पूछा। करीब 1 माह कबल आपकी दुकान से एक अंगूठी खरीदी गई थी, आपको कुछ याद है? ख़रीदार का नाम आरिफ अली था। जनाब, 1 माह में तो हमने सैकड़ों अंगूठियाँ फ़रोख्त की होंगी। महबूब खान ने कहा, आप किस अंगूठी के बारे में पूछ रहे हैं? मैंने अपनी जेब में से अंगूठी की खाली डिबिया निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाई और कहा, मैं इस अंगूठी की बात कर रहा हूँ। डिबिया तो हमारी ही दुकान की है। बोला, हम अंगूठियों के लिए मखसूस डिबिया बनवाते हैं और यह है रसीद इस अंगूठी की। मैंने आरिफ हुसैन की जेब से मिलने वाली रसीद इसे दिखाई। वो रसीद लेकर पढ़ने के बाद बोला, मलिक साहिब, ये रसीद मेरे हाथ की बनी हुई है। आखिर मामला क्या है? घबराने की बात नहीं है। मैंने तशफ़ी आमेज़ लहजे में बोला, आप परेशान ना हो, मैं बस एक बात की तस्दीक के लिए यहाँ आया हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि अंगूठी का डिज़ाइन किस किस्म का था? यह कौन सी मुश्किल बात है? वो जल्दी से बोला। फिर दुकान के अंदर मौजूद एक मुलाजिम को आवाज़ देकर अपने पास बुलाया। मुश्ताक मोहम्मद, इसने मुलाजिम को मुखातिब करते हुए कहा, इस रसीद वाली अंगूठी का जो मखसूस डिज़ाइन तुमने बनाया था वो याद है तुम्हें? वो रसीद को देखने के बाद बोला, मुझे अच्छी तरह याद है खान साहिब। आरिफ अली ने मुझसे खुसूसी फरमाइश की थी कि अंगूठी को ज़बरदस्त होना चाहिए। तुम आरिफ अली को जानते हो? मैंने पूछा। इसने बताया, जनाब, आरिफ अली अपने मोहल्ले में रहता था, पर पता नहीं क्या हुआ वो शहर छोड़कर वापस गाँव चला गया है। मैंने कहा, अब इसने गाँव भी छोड़ दिया है? अच्छा जी, फिर कहाँ गया है? मैंने छत की तरफ इशारा किया। अब वो वहाँ से वापस नहीं आएगा। फिर मैंने मुख्तसरन अल्फाज में मुश्ताक मोहम्मद और महबूब खान को आरिफ अली के कत्ल के बारे में बताया। मुश्ताक मोहम्मद अफसुदा लहजे में बोला, आरिफ अली बहुत अच्छा आदमी था जनाब। मोहल्ले में मेरा सिर्फ इसी से उठना बैठना था। ये बात इसने मुझे बड़े राजदाराना अंदाज में बताई थी कि इस लड़की को सोने की अंगूठी का तोहफा देना चाहता था। मैंने खान साहब से सिफारिश करके अंगूठी की कीमत में खासी रायत भी करवा दी थी। महबूब खान ने कहा, मुश्ताक मोहम्मद, इसी नमूने की एक अंगूठी लाकर मलिक साहब को दिखाओ। मुश्ताक मोहम्मद गया और थोड़ी देर में खूबसूरत डिब्बे में सजी एक अंगूठी ले आया। मैंने पहली नज़र में पहचान लिया। वो हूबहू वैसी अंगूठी थी जैसे मैंने मुतवफ़िया सलमा के हाथ में देखी थी। ये ले अच्छी तरह देख ले मलिक साहिब। महबूब खान ने अंगूठी वाली डिबिया मुश्ताक मोहम्मद के हाथ से लेकर मुझे थमा दी। इस अंगूठी और आरिफ अली वाली अंगूठी में बस एक ही फ़र्क है। इसने मुझे आगाह किया। मैंने कहा, क्या मैं इसे डिबिया से बाहर निकाल कर देख सकता हूँ? ज़रूर देखें जनाब। मैंने अंगूठी को डिबिया से बाहर निकाल लिया। फिर इसका अच्छी तरह मुआयना करने के बाद अपनी राय जाहिर की। मेरा ख्याल है नुमाया फ़र्क तो यह कि अंगूठी 5 माशा से ज़्यादा वज़न की है। आपका ख्याल 100% दुरुस्त है, महबूब खान ने सताइशी अंदाज में कहा। यह अंगूठी पूरे 1 तोले की है।
शाही मोहल्ले की एक बाई ने खास तौर पर बनवाई है। मेरा मकसद पूरा हो चुका था। 2-4 रस्मी बातों के बाद मैं महबूब खान के ताउन का शुक्रिया अदा किया और सुलेमान शाह के साथ दुकान से बाहर निकल आया। अब इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी कि आरिफ अली और सलमा के दरमियान मोहब्बत की कहानी बड़े खुफिया अंदाज में चल रही थी और वो छुप छुप कर मिलते थे। एक ऐसी मुलाकात के दौरान में आरिफ अली ने सलमा को तलाई अंगूठी का तोहफा पेश किया, लेकिन ये मुलाकात आरिफ अली की ज़िंदगी की आखिरी मुलाकात साबित हुई। अब हलतलब बात यह थी कि अगर वाकई राजू राकेश ने आरिफ को कत्ल किया था तो इसे आरिफ से क्या दुश्मनी थी? कहीं वो सलमा का तलबगार तो नहीं था? राजू राकेट की गिरफ्तारी और ज़रूरी हो गई थी, बहुत ज़रूरी और बहुत जल्द। मैं थाने पहुंचा तो पता चला चौधरी शहादत अली मुझसे मिलने आया था। इसने काफ़ी इंतज़ार किया, फिर दोबारा आने का कहकर वापस चला गया था। मुझे थाने में ज़्यादा देर नहीं हुई तो चौधरी शहादत अली की आमद की इत्तला आ गई। मैंने फिलफौर इसे अपने कमरे में बुला लिया। रस्मी अलैक्सला के बाद चौधरी ने पूछा, मलक साहिब आपकी तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है? कौन सी तफ्तीश चौधरी साहिब? आरिफ अली के कत्ल की तफ्तीश। मैंने कहा आखिरी मरहले में है। आपने कातिल को गिरफ्तार कर लिया है? मैंने कहा आखिरी मरहले में है। आपने कातिल को गिरफ्तार कर लिया है? मैंने कहा मैंने राजू की गिरफ्तारी के लिए अपने बंदे दौड़ा दिए हैं। इंशाल्लाह आप बहुत जल्द इसे हवालात के अंदर देखेंगे। चौधरी ने पूछा, क्या ये बात साबित हो गई है कि कत्ल राजू ही ने किया है? फिलहाल तो ये बात साबित हुई है कि आरिफ अली और सलमा एक दूसरे को चाहते थे। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, जिस अंगूठी का जिक्र मैंने आपसे किया था वो आरिफ अली ने सलमा को मोहब्बत के तोहफे में दी थी। एक लम्हे के तोहफ़े से मैंने इजाफा किया। और जहाँ तक राजू राकेट के कातिल होने का सवाल है तो इसका सही पता तो उस वक्त चलेगा जब वो हमारे काबू में आएगा। अच्छा हुआ मुझे वक्त से पहले ही मालूम हो गया। चौधरी ख्याल अफरोज लहजे में गोया हुआ, अगर अपने बेटे का रिश्ता हाँ कर देता तो न जाने वो लड़की शादी के बाद क्या गुल खिलाती। मैंने चौधरी की बात पर तबसरा करने के बजाय अपने तौर पर कहा, चौधरी साहिब अल्लाह का कोई काम खाली अज़ मसलत नहीं होता। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने कहा आरिफ अली अपनी जान से गया, सलमा ने अपने महबूब के गम में खुदकुशी कर ली। अगर सलमा ये संगीन कदम न उठाती तो मुमकिन है आरिफ अली का कातिल इसे भी ठिकाने लगा देता। यानी दोनों सूरतों में इसकी मौत यकीनी थी, लेकिन वो अपने मुकर्रर वक्त और तरीके से ही आती है। मेरा ख्याल है कातिल सलमा के खून में हाथ रखने की कोशिश न करता। चौधरी ने कहा, आरिफ अली को रास्ते से हटाने के बाद वो ये इंतहाई कदम उठा सकता था, मगर सलमा को तो वो हासिल करना चाहता था, इसकी जान कैसे ले सकता था? मैंने कहा अभी तक ये बात साबित नहीं हुई कि कातिल ने सलमा के उसूल के आरिफ अली को कत्ल किया है, और ना ही बात उसूल से कही जा सकती कि राजू राकेट ही आरिफ अली का कातिल है। राजू राकेट की गिरफ्तारी के सिलसिले में अगर आपको मेरे ताउन की ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ, चौधरी ने दोस्ताना अंदाज में कहा। आपकी इस मुखलिसाना पेशकश का बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहिब। मैंने कहा अगर आपके ताउन की ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको ज़रूर तकलीफ़ दूंगा। हमारे दरमियान काफ़ी देर राजू राकेट, सलमा और आरिफ अली के बारे में गुफ्तगू होती रही। फिर चौधरी वापस चला गया। मैं अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ हो गया। तीसरे रोज़ रात में राजू राकेट की गिरफ्तारी अमल में आ सकी। मैं इस वक्त थाने से उठने की तैयारी कर रहा था। नज़ाकत अली ने आकर इत्तला दी, मलक साहिब राजू राकेट गिरफ्तार कर लिया है। कहाँ है वो? मैं ये खबर सुनकर उछल पड़ा था। नज़ाकत अली ने कहा, अभी हासिल करता हूँ जनाब। थोड़ी देर के बाद राजू राकेट मेरे सामने मौजूद था। वो सूरत से सिक्का बंद गुंडा दिखाई देता था। इसने खासी सेहतमंद मूंछें रख छोड़ी थी और ग्रां डेल भी था। इसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी, लेकिन वो कुछ ज़्यादा खूबसूरत नजर नहीं आता था। तो तुम हो राजू राकेट? मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। वो मस्कीन से लहजे में बोला, जनाब नाम तो मेरा रियाज अहमद है, लेकिन लोगों ने राजू राकेट मशहूर कर दिया है। आपने मुझे क्यों गिरफ्तार कराया है? क्या आपको मुझसे कोई शिकायत पैदा हो गई है? मैंने इसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद करते हुए कहा, सुअर की औलाद, क्या तुम समझते हो कि यतीमों वाली सूरत बनाकर तुम मुझे धोखा देने में कामयाब हो जाओगे? इस गलत फहमी को तुम अपने जहन से निकाल दो। मैं थानेदार हूँ, ज़रा दूसरी किस्म का।